Okay, were we on this worksheet or were we on the first one? You can also use your mics. Your mics are on from my side. Yes, Varda, can you please confirm me which exercise we were on? Sir, I don't know because it's my first class. Okay, it's your first day. You haven't take सर any class physically? सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है. You haven't take any class physically? No sir, Okay. it's Uh, my first class. okay, all right. Aruba, आपने सी वाली एक्सरसाइज करवा दी थी लास्ट टाइम. this worksheet. जर्मनी, इंग्लैंड एंड स्पेन वाली सर. Wait. See this one? नहीं, ये वाली नहीं. Were we on present or past? Can you please confirm me? टीचर एक्सरसाइज सी थी और उसका फर्स्ट सेंटेंस था जर्मनी, इंग्लैंड एंड स्पेन और उसके आगे बताना था कि इसमें आर आएगा, इजंट Yes, आएगा या yes. आरंट आएगा. Yeah, this one. जी जी, ये करवा दी थी आपने. ठीक है. So it means that we have to move on towards the D, hopefully, right? Okay, so what there's no not a big deal basically. What you have to do is you just need to recorrect these sentences. These statements are basically wrong, okay? And what you have to do is you just have to make them correct. इनमें कुछ mistakes हैं जो कि आपको rephrase करके सही करनी है, okay? And mistakes हैं इनके state verbs के अंदर, ठीक है? Just you can see the first example. London aren't a country. Obviously, we cannot use aren't with London. It has to be isn't, okay? So London isn't a country. All right. So we just rephrased it and make it correct. From 2 till 10, you have to recorrect it. Okay. If you have any question, you can ask me. Okay. And Vardap, if you visit coaching next time, kindly collect this worksheet from Sir Ahmad or Ms. Raza. They'll provide it to you as an handout. Okay. I hope there is no problem solving this. Okay. Rafe, Rayan, Noor, I'm sure you're solving it. When you are done with the exercise, please raise your hands.
Okay, Abdullah, you are done. Good. Just click on your screen. साइड में मोर का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो रेज हैंड कर दें, वहाँ पे ऑप्शन पे लिखा हुआ होगा रेज हैंड. ओके, दोज हु आर डन प्लीज रेज हैंड. Yes, that's it. Okay, Varda is saying that she is not getting my voice. आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? प्लीज कंफर्म मी. Okay, Abdullah is saying it's clear. Aruba is saying it's clear. Varda, kindly check your internet connection, maybe because of that. Okay, so for now, Abdullah is done, Anisa is done, Aruba is done. बाकी और कौन कौन बच्चे कर चुके हैं, so please inform me. Okay, Javeri is done. Okay, Mohsen, are you done? Rafe, Rayan, please inform me. Hira, okay, you got late. आपको क्लियर तो है ना हिरा के बेसिकली इसमें सॉल्व किस तरीके से करना है? ओके, मोहसिन, यू आर डन, दैट्स गुड. कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? एंड व्हाट अबाउट रयान एंड राफे? Okay, so I'm going to start it now. Okay, Javeria, can you tell me the second sentence? Kindly tell me on mic, speak it. Okay, second sentence में आपने क्या correction की है? The United States isn't a city. Okay, United States isn't a city. Okay. आई एम श्योर कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स से मुराद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है. ओके, बाय द वे आई हैव क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. लेट्स सी हाउ मच डू यू नो अबाउट थिंग्स. इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? यूनाइटेड स्टेट्स में कितने स्टेट्स हैं? मैं ऑप्शन भी बता रहा हूँ. ओके, यू कैन एक्चुअली टेल मी बाय नोइंग द ऑप्शंस. ओके, नंबर 1, 6, 7, 25, 50. 6, 7, 25, 50. अमेरिका के अंदर कितने स्टेट्स हैं जिसकी वजह से इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है? 6, 7, 25, 50. हाँ भाई, तो कंफर्म कीजिए मुझे अपने आंसर्स. यू कैन टाइप इट एक्चुअली. Mohsen, you got the right answer. Javeria, your answer is correct. Abdullah, you are right. Nice.
बाकी बच्चे भी बताओ भाई। Okay, yes sir, Aruba, you are right. United States of America has 50 states, 50 states. ये 50 states को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनता है. Okay. All right, next. अरूबा नंबर 3 बताओ आप मुझे सेंटेंस करेक्ट करके. An elephant isn't a small animal. An elephant isn't a small animal. Yes, that's right. Correct. Okay. Vardha, can you inform me about 4 on mic? मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि हम पढ़ क्या रहे हैं. मेरी फर्स्ट क्लास है तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ अभी. Okay. और मुझे माइक में सही तरह आवाज भी नहीं आ रही. अच्छा, आप बेटा कंफ्यूज ना हो. हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है स्टेट वर्ब्स का. ठीक है. स्टेट वर्ब्स से मुराद इज, एम, आर. आपने इसको नॉर्मली जो यूज़ किया है वो आपने यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर. ठीक है. जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, शी इज़ कुकिंग फूड, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इस तरीके से. ठीक है. इनके अलावा इज, एम, आर को स्टेट वर्ब्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है. अभी जब आप ये सेंटेंसेस देख रही हो तो इसमें आपको, जब आप इन्हें एक दफ़ा पढ़ के देखो, बोल के देखो, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि इसमें जो है इज़, एम, आर का गलत यूज़ हुआ हुआ है. तो वो करेक्ट हो रहा है, उसको करेक्ट करवा के सेकेंड सेंटेंस बनवाया जा रहा है इस वक्त. अभी जो बच्चे मिस्टेक्स बता रहे होंगे तो आपने नोट किया होगा. जैसे फर्स्ट सेंटेंस, लंदन आर नॉट अ कंट्री. ऑब्वियसली वी यूज लंदन इज नॉट. ओके. So by the fact that we are solving this worksheet, आप 4 वाला एक दफा ट्राई करो, बोल के देखो. अभी पढ़ो 4 में क्या लिखा हुआ है. English and Turkish isn't sister language. अब इंग्लिश एंड टर्किश यहाँ पर आ रहा है, क्या इसके साथ isn't सही यूज किया है? Is आएगा आई थिंक. is. जी. यहाँ सब्जेक्ट नोट करें, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है. isn't होना चाहिए या आर नॉट होना चाहिए? लेकिन सर जो ऊपर हेडिंग दी हुई है बाय यूजिंग इज एंड एम आर नॉट लिखा हुआ है. हाँ, उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने ऑब्वियसली यूज तो आर करना है ना, वरना एक्सेप्ट दैट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. आप या तो सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका. आई नो इट्स मिसिंग ओवर देयर, आई गेस. यस, बट द एक्चुअल सेंटेंस इज इंग्लिश एंड टर्किश आर नॉट सिस्टर लैंग्वेजेस. ओके. ओके. अच्छा, मेरा यहाँ पर वैसे आप सब बच्चों से सवाल भी है. ओके. That's true. English and Turkish are not sister languages. Turkish language की sister language कौन सी है? I'm also giving you options. Okay, listen. Arabic, Persian, Urdu, Portuguese. Which is the sister language of Turkish? Arabic, Persian, Urdu, Portuguese. You can message me your answers or you can even say it on mic. It all depends on you. Which language is the sister language of Turkish? Arabic, Persian, Urdu, Portuguese. Yes, Javeria, you got the right answer. Aruba, your answer is right. Hira, do you know this answer? And what about you, Varda? Just try to guess it. सर आई डोंट नो. Just fluke it.
Obviously, I'm not going to give you a reward for this, so you can just say whatever you like. Should I repeat the options? सर रिपीट करें. Arabic, Persian, Urdu, Portuguese. Okay, Abdullah, you said an answer and it's a tukka. Okay, all right. Portuguese. Okay, Portuguese. Okay, Portugal जो country है आपने नाम सुना होगा. Ronaldo is basically from there, Portugal. Okay, so their language is Portuguese. All right. Okay, so let me inform you. The sister language of Turkish is Urdu. Urdu is the sister language of Persian. Oh, sorry, Persian and Turkish. क्योंकि उर्दू लैंग्वेज जो है बड़ी डिटेल्ड लैंग्वेज है और इसके अंदर जो है कई सारे लैंग्वेजेस का मटेरियल शामिल है और सबसे ज़्यादा टर्किश का क्योंकि द टर्किश वॉरियर्स व्हेन दे स्प्रेड देयर स्टेट जब उन्होंने फतवा शुरू कर दी थी तो दे केम इंडिया एंड देन आफ्टर इंडिया दे बिकेम वो तुगरल जो लोग थे वो मुग़ल बन गए और फिर मुग़लिया सल्तनत ने अपने साथ अपनी लैंग्वेज यानी कि उर्दू को भी बड़ा प्रमोट किया एंड देन वी हैव आवर ओन उर्दू. सो कीप दिस इन माइंड. ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी काम की होती हैं एंड मे बी यू डोंट नो कि आपके कब काम आ जाए. ऑलराइट, नंबर 5, मर्सिडीज आर्ट अ बाइक. अब्दुल्ला मुझे आप बताओगे ये नंबर 5 में क्या करेक्ट ऑप्शन है एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू यूज योर माइक. सर इसमें मर्सिडीज इज नॉट अ बाइक. Mercedes isn't a bike. Correct. Zabardast. अच्छा, number 6 is quite easy. Hira, can you say this sentence? If you can speak the sentence, it will be very good. I'm a student. Am I a student? Yes, that's correct. वर्दा बेटा क्लियर हो रहा है अभी हम क्या कर रहे हैं आगे एक दो सेंटेंसेस और. Yes, sir. Okay, that's good. Anisa, can you please tell me number 7? Miss Stewart isn't poor woman. Okay, Mrs. Stewart isn't a poor woman. Okay, that's right. अच्छा, यहाँ पर हम isn't भी use कर सकते हैं और is भी कर सकते हैं. No problem at all. Maybe she is, like we don't know it, Mrs. Stewart. So is भी use किया जा सकता है और isn't भी. But are not तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा. Okay. All right. Rayan, can you please tell me the 8th one? Number 8. Rayan Ahmed. Surrogate is good for people, is not. Is not already है यहाँ पे. Should we use are not? Yes, sir. Speak the sentence. Surrogate is Not is, are. good. Surrogate are not good people. Okay. Yes. Cigarettes aren't good for people. All right. Okay. So, मुझे number 9 कौन बताएगा? Everybody is allowed to answer. Okay. Okay, Arupa, you can tell. The North Pole isn't hot. The North Pole isn't hot. Yes. That's right. Isn't आएगा. अच्छा, ये North Pole के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं. We have 7 continents in this world.
6 are actually able to be lived, वहाँ पे रहा जा सकता है, जबकि एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ है और वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि वहाँ रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, राइट? सो this is one of the area where it is seriously very tough to go. Even you can't actually breathe, सांस भी नहीं ली जा सकती, ऐसा एटमोसफियर है वहाँ पे। आई गेस यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर भी माइनस में ही रहता है, -20 और 25 समथिंग लाइक दिस। ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, वर्स्ट सोचें क्या होगा। अच्छा भाई वर्दा, मुझे नंबर 10 बताओ आप। Simone साइमन। in आएगा सर, मे बी। पूरा सेंटेंस पढ़ के बताएं। साइमन है ये वर्ड पहला। Simon are from United Kingdom. आपने क्या करेक्ट किया इसको? R की जगह मे बी in आएगा शायद, या इन नेक्स्ट आएगा। इन या इज? Is हाँ, अब पूरा सेंटेंस सही पढ़ के बताएं। Simone is from United Kingdom. Okay, Simon is from United Kingdom. Yes, that's right. Okay. I hope so ये आप सब बच्चों के सारे सही हुए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई रिपीट करना है या कुछ कंफर्म करना है, सो प्लीज़ मैसेज मी, ओके? आई एम वेटिंग। और वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज ई। कोई रिपीट करना हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें, ठीक है? एक्सरसाइज ई, इट्स अ पैराग्राफ पोस्ट कार्ड। बेसिकली एक पोस्ट कार्ड है जो कि आप लोगों ने सॉल्व करना है, एंड इट्स क्वाइट इजी। लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, इस पैराग्राफ के अंदर ना अगर आप एक स्टेटमेंट को कहते हैं नेगेटिव बनाते हैं तो इसका असर आगे वाली लाइन पे पड़ेगा, तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है? यानी ट्रांसलेशन जहन में रखते हुए इस पैराग्राफ को सॉल्व कीजिएगा। आई एम गिविंग यू 2 minutes, 2 to 3 minutes, okay? But if you have any problem, you can directly ask me, okay? Okay, if you are done, so please raise your hand. I'm waiting for all of you. Okay, so Aruba is done, Anisa is done. Okay, what about Abdullah, Hira, Javeria, Mohsen, Rafe, Rayan, and Varda?
Just 3 students are done right now, I guess. Javeri is done again. Okay. Uh, please do it quickly. Okay, Mohsin, you are done. All right. Just 1 more minute and then we are going to discuss. ओके सो लेट्स कंटिन्यू इट. इसमें बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको अगेन, क्योंकि इट विल गो वेरी क्विक. ओके, ऑलराइट. Hello, my name is Jack and this is Sue. She is my sister. Sue is 12 years old and I am 16. We are not adults. Okay, we are not adults. Why? Just see, Sue is 12 years old and I am 16. So 12 years and 16 years, obviously they cannot be adults. Adults hone ke liye they have to be bigger than that. Okay, we are students. We are not Canadians. Okay, अच्छा हमें कैसे पता that they are not Canadians? Because आगे देखिए, we are Americans. We are from Chicago. Chicago is in the United States. Okay, इसमें कोई confusion है तो पूछिए और अपने answers भी बताइए कि कितने सही हुए आप लोगों के. Okay, Javeri is saying all correct and Aruba is saying all correct. Mohsin, how about you? एक wrong हो गया अब्दुल्ला. Okay. वर्दा, व्हाट अबाउट यू? आपका ये सही हुआ? सर मेरे फर्स्ट वाली जो लाइन है वो गलत हुई है, बाकी सब सही है. बाकी सारे सही किए अभी हैं. तक समझ नहीं. जी. ज़बरदस्त, वेरी गुड. अच्छा बेटा, मुझे इन्फॉर्म करो कि आप कोचिंग के करीब ही रहती हैं? जी. ठीक है, तो बेटा कोशिश करें कि आप कोचिंग जाएं और वहाँ पर मिस फिज़ा होंगी या सर अहमद होंगे, उनसे आप वर्कशीट रिसीव कर लें. उसका रीज़न ये है कि जब आप रिसीव कर लेना तो मुझे इन्फॉर्म कर दिएगा, मैं पिछली वाली उसकी आपको एक्स्ट्रा क्लास दे दूँगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा लेक्चर समझ में आएगा. अभी तो आपने 20 से ज्वाइन किया, ऑब्वियसली आई नो देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम, बट जब शुरू से आप बात समझेंगी तो आपको ये बिल्कुल क्लियर चलेगा. सही है? ओके सर. ओके. अच्छा राफे बेटा, मुझे ज़रा बताओ कि कौन सी 2 मिस्टेक्स हुई हैं. अच्छा, हेरा यू गॉट 1 रॉन्ग. ओके, अनीसा के सारे सही हैं, एक रॉन्ग है, बाकी सही. मेरे ख्याल से वो एडल्ट्स वाला रॉन्ग हो गया अक्सर बच्चों का, वहाँ वो ध्यान दे नहीं पाए होंगे इस हवाले से. देखा, ये बड़ा ट्रिकी होता है एकदम से जो है ना, आपका एक स्टेटमेंट कहते हैं ना, इसीलिए कि बड़ा सोच समझ के जो है वो बोलना पड़ता है. एक लफ्ज़ जो है वो आपके पूरे स्टेटमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. अच्छा, अब जो हम आ रहे हैं वो एक्सरसाइज F है. इसके अंदर बेसिकली करना क्या, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस आपको समझनी पड़ेंगी इसको सॉल्व करने से पहले. जस्ट सी, आपको जो है एक सेंटेंस के कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, चंक्स जिन्हें हम कह सकते हैं. देखें, जैसे यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल देखें, क्रिस, 9, स्टूडेंट, शॉर्ट, नॉट चाइनीज़. ये आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये आपको छोटे छोटे से लफ्ज़ दिए गए हैं.
आपको इन्हें कंबाइन करके सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। एग्जाम्पल के अंदर देखें, जो पहला वर्ड था क्रेस, उसके बारे में लिखा हुआ है क्रेस इज 9 years old, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज शॉर्ट, ही इज नॉट चाइनीज। तो इसी तरीके से जो आगे वाले वर्ड्स हैं उनको सेंटेंस में आपने फॉर्म करना है, ठीक है। So you should start doing it now. सर ये 1 मिनट दोबारा समझा दें क्या करना है इसमें? बेटा ये वर्ड्स दिए गए हैं, अल्फाज दिए गए हैं, इनको आपने कंबाइन करके मिलाकर जुमले बनाने हैं, अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है इनको, ठीक है। अगर आप पहली एग्जाम्पल देखो ना तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल ऊपर पहली लाइन इसी तरीके की लिखी हुई है और नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने दूसरा भी करना है। आई एम श्योर कि ये एफ आपको क्लियर है। एंड बाय द वे आवर क्लास इज जस्ट गोइंग टू एंड, वी हैव 5 minutes, ओके। सो 5 minutes है, इसका मतलब ये है कि ये एकदम क्लास एंड हो सकती है। जूम का जो टाइम होता है, टाइम लिमिटेड होता है इसमें, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एफ और जी आप लोग ये सॉल्व करके मुझे जो है वो कल इसके आंसर्स बताओ, ठीक है। जी में भी बेसिकली यही करना है जो ऊपर एफ में करना है, लेकिन इसमें एक छोटा सा फ़र्क है। जी के अंदर आप देखो वर्ड्स के एंड में माइनस और प्लस लिखा हुआ है। माइनस का मतलब है नेगेटिव सेंटेंस और प्लस का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस। अगर माइनस लिखा हुआ है तो आप माइक, जैसे माइक और ड्रमर को मिला के एक नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे कि माइक इज़ नॉट अ ड्रमर, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे के सेंटेंसेस। तो ये दो एक्टिविटीज़ जो हैं ये बेसिकली मैं आपको एज एन होमवर्क दे रहा हूँ, जो आप लोग कल कंप्लीट करोगे, ठीक है। अपनी कॉपी अपने साथ रखिएगा और जिन बच्चों ने वर्कशीट रिसीव कर ली है कोचिंग से तो वो डायरेक्ट वर्कशीट को सॉल्व करें, वर्कशीट पर सॉल्व करें, सही है। सो इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय क्लास टुमारो, सो hopefully you will solve it and take care of yourselves and must remember me in your prayers. Allah Hafiz.